उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को फारूक आजम कहा जाता है। یہ بھی غلط کہا جاتا ہے، کسی حدیث میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم نہیں، ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں۔ صدیق اکبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فاروق اعظم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ مولویوں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے، حدیث میں صرف صدیق آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں نے واقعہ معراج والے لیکچر میں 126 ABC میں بتایا تھا کہ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا ہے۔ صدیق اکبر یہ بالکل بدعت بنایا ہوا ہے، صدیق ہے صرف، فاروق اعظم بھی نہیں، صرف فاروق ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ پوچھیں، صدیق اکبر فاروق اعظم آگے کیا آتا ہے؟ صرف غنی، اتھی بھی ہونا چاہیے تھے غنی کبیر، کوئی نہیں نہ آیا، وہ صحیح ہے، صرف غنی۔ حیدر کرار، حیدر اعظم تو کوئی نہیں آیا نا، علی المرتضیٰ ہی آیا، مرتضیٰ اعظم تو نہیں آیا نا۔ تو یہ پہلے دو علماء نے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ اس لیے بنائے کہ تاکہ اس کے ذریعے ہم کسی اور کو بھی ٹائٹل دے دیں گے، وہ ٹائٹل بھی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اپنے زمانے میں معظم تھے، ہم کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے۔ ان کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام موجود تھے، ان کے استاد اور سب سے بڑے عالم۔ ویسے تو ہم امام مالک کو بھی ان سے بڑا امام سمجھتے ہیں، کیونکہ امام مالک حدیث کے بھی امام تھے، فقہ کے بھی امام تھے۔ امام حنیفہ سے اگر کمپیئر کیا جائے، ان کے زمانے میں امام مالک ان سے بڑے امام تھے، اور امام مالک کے پوتا شاگرد ہے امام حنیفہ جی۔ امام مالک کے شاگرد ہیں امام محمد، امام محمد نے امام مالک سے الموطا امام مالک نقل کی تھی، جو الموطا امام محمد کے نام سے مشہور ہے۔ جب امام حنیفہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا مجھے بھی یہ حدیثیں لکھوانا جو تم مالک سے سیکھ کے آئے ہو۔ تو امام حنیفہ تو پوتا شاگرد ہے امام مالک کے، تو امام مالک کو امام اعظم کہا کرے نا، ٹھیک ہو گئے۔ احباب کرام، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سنا، جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کہنا بدعت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ان کے لیے فقط صدیق آیا ہے، صدیق اکبر نہیں آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے پوتا شاگرد ہیں۔ یہ ایک تشکیک کا فتنہ ہے جو لوگوں کو مختلف حیل و بہانوں سے اسلام اور اکابرین امت سے دور کرنے کے درپے ہے۔ اس کے بارے میں مختصراً میں کچھ باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کہنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم کہنا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہنا بالکل درست ہے، عقل اور نقل کے عین مطابق ہے۔ وہ اس طرح کہ تقابل ہمیشہ ایک طبقہ اور ایک نوع کے افراد میں ہوتا ہے، متعدد طبقات اور متعدد انواع کے افراد میں نہیں ہوتا۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہیں، صدیق اکبر ہیں، مگر وہ طبقہ انبیاء میں ہیں، نوع نبوت کے افراد میں ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم جماعت صحابہ میں کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم طبقہ فقہاء میں کہا جاتا ہے۔ جیسے نوع نبوت ہے، ایسے ہی نوع صحابیت ہے، اور ایسے ہی نوع فقہاء ہے۔ تو ہر ایک اپنی نوع اور طبقہ کے اعتبار سے اعظم ہے۔ تو مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نہیں، یہ بدعت ہے، مولویوں نے ایجاد کیا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ حدیث مبارکہ میں انہیں صدیق اکبر نہیں کہا گیا، اس پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ القابات بعینی ہی صراحتاً احادیث میں موجود اور مذکور نہیں ہوتے، ان کو مراتب سے،
कमालात से मुस्तंबत किया जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर फरमाया। अरहम इसमें तफजील का सीगा है, जैसे अकबर इसमें तफजील का सीगा है। तो अरहम आपको फरमाना, इससे उनके अकबर होने का इस्तिंबात होता है। और वैसे भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले हुजूर की तस्दीक की, हर मामले में की और फिर बिला दलील की। तो इस नौइयत और कैफियत को देखते हुए उनकी तस्दीक की वैल्यू और कैफियत दीगर सहाबा की तस्दीक से मुमताज़ और मुनफरिद है। और हदीस मुबारका में उनके लिए लफ्ज़ अरहम भी आया है। मिशकात शरीफ में हदीस है, तिरमजी में हदीस है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर आया। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान आया। और मिशकात की रिवायत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए अक़ज़ाहुम अली भी आया। तो अलक़ाबात अहादीस में मौजूद हैं और ये लक़ब सिद्दीक़ अकबर हदीस रसूल से ही मुस्तफ़ाद है। अकबर भी इसमें तफजील का सीगा है, अरहम भी इसमें तफजील का सीगा है। अलबत्ता मिर्ज़ा साहब का इल्म इस कदर है कि जब वो एतराज़ करने पे आए तो उन्होंने एतराज़ में कहा, हज़रत उस्मान को गनी कहा, गनी कबीर नहीं कहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हैदर कहा, हैदर आज़म नहीं कहा। मुर्तज़ा कहा, मुर्तज़ाए आज़म नहीं कहा। तो जो आपके जहन और इल्म में है, हदीस आपके जहन और इल्म के मुताबिक नहीं चलेगी। आपके जहन और आपके इल्म को हदीस के मुताबिक चलना चाहिए। कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अस्दक नहीं कहा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अक़ज़ा नहीं फरमाया गया। तो जब हदीस मुबारका में हज़रत उस्मान को अस्दक कहा गया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अक़ज़ा कहा गया, तो मिर्ज़ा साहब ये इसमें तफजील के सीगे हैं। ये वही सीगे हैं जो अकबर सीगा है, ये वही सीगे हैं जो आज़म सीगा है। इसमें तफजील के तमाम सीगे अपने मौसूफ में मस्दरी माना की ज़्यादती पर दलालत करते हैं। तो हदीस आपके अल्फाज के ताबे नहीं होगी। आपका जहन, आपकी सोच, आपके अल्फाज हदीस रसूल के ताबे होने चाहिए। तो आपका ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि हदीस मुबारका में अलक़ाबात की वजाहत नहीं है और हदीस मुबारका से ये अलक़ाबात मुस्तंबत नहीं होते। अगली बात ये है, आपने कहा कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से बड़े फ़क़ीह हैं और उनसे बड़े इमाम हैं। इस पर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, अस्माउर रिजाल के माहिरीन ने और उलमा ने दोनों की सन्ने विलादत 80 हिजरी लिखी है और दोनों ताबई हैं। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह भी और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह भी। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात भी ही हुई है, इल्म हदीस व फ़िक़्ह में इस्तिफ़ादा भी किया है। लेकिन इसके बावजूद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इमाम आज़म हैं। ख़ानदानी शराफत अपनी जगह, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ही हैं और उसकी बहुत सारी वजूह हैं। सबसे पहली वजह यह है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फ़ुक़हाए अरबा के हम पल्ला नहीं हैं और फ़ुक़हाए अरबा में जो मकाम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का है वो फ़ुक़हाए सलासा का नहीं है। दूसरी बात यह है, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह, उनके इज्तिहादात महफूज और मुदव्वन नहीं है। जिस फ़िक़्ह की निस्बत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ की जाती है, दर हकीकत वो इमाम साहब की तालीमात व हिदायत, उनके इज्तिहादात व इफ़ादात का मजमुआ नहीं है, फ़कत उसकी निस्बत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ है। अगली बात यह है, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से जब कोई शख्स इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में कोई मसला दरियाफ्त करता तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह उसे इमाम अबू हनीफ़ा के पास भेजते थे और फरमाते थे अबू हनीफ़ा से जाकर मसाइल पूछ लो। इस पर एक वाक़या मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी ने फ़ुरूए काफ़ी किताबुर रोज़ा में
मोहम्मद बिन मुस्लिम का भी लिखा है, जिन्हें ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजा था, और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो ताबीर बताई, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तायीद और तौसीक फरमाई। और इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात मजीद भी किताबों में आपको मिल सकते हैं। तो गुजारिश ये है, मर्तबे की तायीन के लिए बहुत सारी चीज़ें देखना होती हैं जिनका शायद आपको इल्म नहीं है। और तीसरी बात आपने ये फरमाई कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के इमाम अबू हनीफा पोता शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद से, उन्होंने मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायात ली। इस पर मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा, एक होता है किसी का शागिर्द बन जाना बाज़ाबिता बाकायदा, और एक होता है किसी से कोई बात पूछ लेना या किसी से किसी की कोई बात ले लेना। इससे रुतबे की फौकियत साबित नहीं होती। अगर इससे साबित होती फिर आपको ये दावा करना चाहिए था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं, तो फिर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को करास करके आप इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द क्यों करार दे रहे हैं। बाकी मैंने पहले अर्ज किया, रुतबे का बढ़ जाना, इसको सिर्फ इससे आप साबित नहीं कर सकते कि मुअत्ता इमाम मालिक की कोई हदीस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मोहम्मद से सुन ली, तो क्या क़िरात के मसाइल खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत उबई से नहीं पूछते थे? हलाल व हराम के मसाइल हज़रत मुआज से नहीं पूछते थे? विरासत के मसाइल हज़रत ज़ैद बिन साबित से नहीं पूछते थे? खुलफ़ाए राशिदीन और रुतबे में बड़े सहाबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नहीं लेते थे। इस सब कुछ के बावजूद खुलफ़ाए राशिदीन का रुतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बड़ा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ज़्यादा है। तो आपका दावा इससे साबित नहीं होता। बाकी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं और उनका ताबई होना मुत्तफ़क़ुन अलैह हकीकत है, जबकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ताबी नहीं है और ताबी का मुकाम गैर ताबी से ज़्यादा होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 93 हिजरी में पैदा हुए हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सन 80 हिजरी में पैदा हुए हैं। उम्र में भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 13 साल के लगभग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से छोटे हैं। फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम ने 1911 में जो मुक़ल्लिदीन के एतबार से मरदम शुमारी की, उसमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिदीन की तादाद 4 करोड़ बताई गई और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिदीन की तादाद 34 करोड़ से भी जायद बताई गई। और ये 1911 की बात है, अब 2020 चल रहा है। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिदीन की तादाद में किस कदर इजाफा हुआ होगा, इसको मैं और आप बखूबी समझ सकते हैं। शागिर्दों के एतबार से भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैं। वो इस तरह कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के 3 लाख शागिर्द हैं, तलामिज़ा हैं, जिनमें 86 मुजतहिद हुए हैं। और हदीस की सनद भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की आली है। इमाम साहब की वहदानियात हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान बाज़ रिवायात में एक ही वास्ता है और वो सहाबी का है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की वहदानियात नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और सुन्नत से जिन मसाइल का इस्तिंबात किया है वो भी इमाम मालिक और दीगर अइम्मा के इस्तिंबात किए हुए मसाइल से ज़्यादा हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और सुन्नत से जो मसाइल मुस्तंबत किए उनकी तादाद 12,90,000 बताई जाती है। अगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से इमाम मोहम्मद की विसातत से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मुअत्ता की कोई रिवायत ली तो इसका ये मतलब नहीं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इमाम मालिक बड़े इमाम बन गए, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरा से एक हद को मुअख्खर किया और उनके बताए हुए मसला पर अमल किया और फरमाया लौला अलीयुन
لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے پر، فتوے پر عمل کیا اور ان سے مسائل معلوم کیے، لیکن اس کے باوجود رتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی سے زیادہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے امام ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متعدد وجوہ سے امام اعظم ہیں، ان کو امام اعظم کہنا بھی عقل اور نقل کے عین مطابق ہے، کیونکہ وہ طبقہ فقہا میں امام اعظم ہیں۔ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہنا بھی جائز ہے، کیونکہ وہ طبقہ صحابہ میں صدیق اکبر ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ کے حضور کے مقابلہ میں کھڑا کرو گے اور حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہنے کی صورت میں حضور کے مقابلہ میں کھڑا کرو گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو میں اپنے احباب سے کہوں گا، مرزا محمد علی یہ مستند اور باقاعدہ عالم نہیں ہے، اور لوگوں میں شکوک و شبہات پھیلا کر دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس سے اجتناب کیا جائے اور مسائل مستند معتبر علماء اور مفتیان سے پوچھے جائیں اور انہی کی تقاریر سن کے اپنی زندگی کا لائحہ عمل مقرر کیا جائے۔